ऐसा है सर, इफ यू वांट टू सेलेक्ट मी गुड इनफ, इफ नॉट देन आई विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन। तुम्हारी स्टोरीज कभी भी कम नहीं पड़ेगी, ज्यादा हो जाएगी। मेरे स्पेस कम पड़ रहे थे तो मैंने थोड़ी सी हैंडराइटिंग छोटी करनी शुरू कर दी। I have given 21 attempts. People used to say me that भाई तेरे बस की नहीं है तो छोड़ दे। मैंने बोला मेरे बस की नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास 42 साल की उम्र तो है। फील प्राउड कि आप कहीं जा रहे हो, ऐसी जगह पे जा रहे हो वेयर यू विल बी डायरेक्टली सर्विंग द नेशन। हर एक बंदे ने मुझे कहा यार तू क्या सीख के आ गया ऐसे, ये चेंज कैसे है? I improved my role play as a son, as brother, as a friend, which gave me inner confidence this time. I was a good person. Because I have improved as a son, so there I was also a good candidate to help my mom, help my father, help my sister, help my parents a lot, and I became a good citizen of a country, helping my neighbors, helping my friends. So all those questions which were there, it became very easy for me to answer. Comparing it with last attempt, I was able to improve myself, I was able to correct myself, and learning from the previous mistakes and failures, I came up with solutions that how can I improve, and I applied them. The lessons which I learned in the academy, then in the SSB, was that we have to first accept the mistakes whatever we have done in the SSB or in the life, rather in the life, not in the SSB, that whatever mistake we have done, we have to accept that, and then coming out with the solutions to solve it. So it becomes very easy when we are improving in life. Then there is no way that we won't be able to do well in SSB, especially the 5 BRCC. It is not a technique that is specifically made for SSB, but it is a technique which broadly covers our life. इस बार डिफरेंट क्या हुआ पिछले 7 अटेम्प्ट में जो नहीं हुआ था, इस बार ये हुआ कि मैंने ये नहीं सोचा कि जो अगर मैं ऐसा उसको आंसर दूंगा तो वो मेरे को सेलेक्ट कर लेगा या नहीं करेगा। इस बार मतलब जैसा मैं हूँ मैंने उसको बोल दिया ऐसा है सर, इफ यू वांट टू सेलेक्ट मी गुड इनफ, इफ नॉट देन आई विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन। इसी गलती तो यही थी कि जहाँ मैं मतलब कोई भी टास्क है ना तो मैं उसको सोचता था कि मतलब जीटीओ सर है या फिर कोई भी उसका ध्यान मेरे पे है कि नहीं है, तो मैं उसका ध्यान कैसे खींचूं। लेकिन इस बार नेचुरल और ओरिजिनल जितना बिहेव करता हूँ यहाँ पे दोस्तों के साथ, वैसा बिहेव वहाँ पे किया। घर पे भी काफी मैंने इम्प्रूवमेंट देखी अपने बारे में। जैसे मैं कहूंगा कि घर पे पहले मान ले कि मैं बाहर निकलता था, घर से नहा के निकला तो टावल वगैरह फेंक दे, इधर उधर सब गिरा दिया। लेकिन अब काफी वेल अरेंज है, घर वाले भी खुश हैं और बाकी सब भी हैं खुश कि जैसे बाहर जाता हूँ दोस्तों से बात करने का तरीका होता है, आपके बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि आप कैसे सोचते हो, तो चीजों के बारे में कैसे सोचते हो, वो वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया इधर आने के बाद। यहाँ पे काफी एक्सरसाइजेज भी की थी, जैसे 5 BRCC वगैरह, उसने मेरे को काफी फायदा बचाया। और वो SSB की बात नहीं है, उसके बाद मैं 3 बार बाहर भी हूँ, लेकिन बात यह है कि मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे मैंने फोकस किया कि हाँ इंप्रूवमेंट्स हो रही है, और उन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करता रहा, जिसकी वजह से हो गया रिकमेंड आपके। I would like to tell you that very interesting thing that he has never come to Lakshya Academy. Just by watching Rodriguez's video on YouTube channel, he got recommended. And that videos is not only for the SSB prospect, and it is also for the life skills. There should be a proper goal and there should be action in each and every TAT stories. There should be a lot of action in each and every stories. So these kind of things I got from that videos only. And not only this, I got ideas also to how to go about and how to write the actions more correctly. So SSB is all about presenting yourself very real, and that I have learned from the videos of the sir that you can keep yourself truthful. I have given 21 attempts. People used to say me that भाई तेरे बस की नहीं है तो छोड़ दे। मैंने बोला मेरे बस की नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास 42 साल की उम्र तो है, मैं 42 साल तक दूंगा। और देश के लिए जो भक्ति है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आई विल कि आपने 2-4 अटेम्प्ट करा है और उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं ये मेरे बस की नहीं है, तो शायद आप सही हो। लेकिन अगर जो छोड़ नहीं रहा है इस चीज को और जो इसके पीछे लगा हुआ है, कड़ी मेहनत कर रहा है, डेफिनेटली उसको मिलेगी, एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी। मेरे को 11 साल में मिली है, आपको भी मिलेगी, जरूर मिलेगी। घर और
खुशी होती है उस चीज़ के लिए कि जब मैं यहाँ से गया तो जितने लोगों के साथ में बैठा प्रिपरेशन करता था, मेरा लंबा टाइम नहीं था, 15-20 दिन का था, हर एक बंदे ने मुझे कहा यार तू क्या सीख के आ गया ऐसे, ये चेंज कैसे आया। और लोगों ने मुझे कहा कि अब की बार जाओ हो जाओ। तो जब कनेक्टिविटी लगी तो मुझे लगा यार ये तो रामबाण है, अब तो हो गया काम। और कनेक्टिविटी के बाद में जैसे ही सर ने मेरा डोजियर दिया, उस डोजियर के बाद मेरी स्टोरियाँ सारी पूरी हो गई। मैं दौड़ के सर के पास गया, सर ने मुझे बुलाया, मैं बोला सर मेरी स्टोरी पहली बार टाइम के साथ पूरी हुई। और यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहाँ फट्टा बल्ली आई वहां एक ही चीज दिमाग लगाई कि यहाँ बेलचा कहाँ लगा है, बात ही करूँ। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ आके सीखी है कि आपका थॉट कैसे बदलता है, कि जब आप हर चीज में इंप्रूवमेंट करेंगे। कॉन्फ्रेंस आउट होने का रीजन कि यार मैं ना साइक स्टोरीज में इमेजिन नहीं करी कभी मैंने अपनी लाइफ में। तो बुक्स काफ़ी आती है मार्केट में, रट्टे मार के लिख दिए थे मैंने उस टाइम पे। सो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया काफ़ी। मैंने ना अपने 3-4 साल की लाइफ के इंसिडेंट्स रिकॉल करे थे, जो भी मैंने छोटी छोटी चीज़ करी लाइफ के अंदर। चाहे मैंने मम्मी की हेल्प किसी चीज़ में करी हो, नहीं करता तो मैंने रोल पे सुधारा, 3 महीने में सुधारा। अब तो मेरे को कंटेंट रेडी करने में गए, इंसान तो अच्छा बन जाऊँ, ये तो बात की बात है। मम्मी पापा को तो खुश होने लग जाएगा कम से कम मेरे से एटलीस्ट। तो मैं अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स लिखने लगा, दोस्तों के लिए क्या किया। मैं 3 साल से कॉलेज में बहुत कुछ कर रहा था, पर इनको तो मैसेज में कोई ध्यान ही नहीं देता था कि यार तूने इतना कुछ कर रखा है। तो यार चीज़ बता बेसिक से समझ में यहाँ पे आई कि तुम लोग को ना मेहनत करनी है सिलेक्ट होने के लिए। जो तुम एक्चुअल में बंदे हो ना, सब बंदे में मेरे को लगता है पोटेंशियल होता है, ऑलमोस्ट हर बंदे में होता है। बस मेहनत की जरूरत होती है कि तुम अपनी ही ओरिजिनलिटी को बचाने के लिए वर्क हार्ड करो। तुम एक्चुअल अपनी लाइफ में ना उसको इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है जो तुमने अपनी लाइफ में करा है ना, बहुत कुछ करा है बंदे ने। इतने तुम 21-25 साल एज लेके बैठे हो, सबने करा हुआ है। और अपन उनको एनालाइज करते हैं, दुनिया से पूछते हैं अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अच्छा तेरा मेरे पेरेंट्स को ओपिनियन में मैं क्या लिखूँ। अरे मैं कैसे बताऊँगा, तू अपना सोचना। मेरे पेरेंट्स जो सोचने वाले सोचते तेरे बारे में, कुछ और सोचते हैं तेरे बारे में, बट सोच तो सही। उनसे बात तो क्या है, तुम पहले ना अपने पेरेंट्स, नेबर, दोस्तों, भाई बहन से सेलेक्ट हो जाओ, वो तो ले लेंगे। पिछले 3 महीने से मेरे घर वाले इतने खुश रहते हैं ना मेरे से, मैं इतना कुछ करता हूँ। बेसिकली आप यार अपनी लाइफ का रोल प्ले इम्प्रूव करो, हर रोल। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए रोल प्ले नहीं कि हम 5 ईयर्स कर रहे हैं, एक्चुअल में अप्लाई करो। और जो भी चीज़ करते हो ना, 5 पॉइंट परसेप्शन, ये तो तुम्हारी थिंकिंग को इतना एक्सपेंड कर देगा। मतलब 5 ईयर्स सर ने बहुत ही ना सोच समझ के बनाई हुई चीज़ है। इस चीज़ को दिल में उतार लो। मैं फर्स्ट ईयर में कहा कि यार कम तो इस चीज़ में दुनिया कहती है यार ये कर लूँगा, ये तिगड़ा बैठा लूँगा, हो जाऊँगा। नहीं, 5 ईयर्स से बिलीव करे। पीजीटी में क्या होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला काफी सिंपल होता है, तो सभी एक दूसरे के ऊपर कि मैं करूंगा। सेकंड थर्ड में लोग अटकने लगे। फिर सर ने हमें बेलचा कंसेप्ट बताया था, आई जस्ट वर्कड विद दैट एंड क्विकली मुझे आइडियाज आते जा रहे, मैं लगाता जा रहा। एंड सिंस 5 BRC किया है, रोल प्ले किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्यूरियोसिटीज, 5 पॉइंट परसेप्शन किया है, सब किया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिकली एक स्माइल के साथ सारे आंसर्स दिए एंड ही ऑल्सो स्माइल्ड इन ए वेरी गुड मैनर, तो बहुत अच्छा लगा। SSB का 5 पॉइंट परसेप्शन होगा काम एंड कंपोज। अगर काम और कंपोज हो तो यू विल गेट नंबर ऑफ आइडियाज। कॉन्फिडेंट हो, यू हैव द पावर टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। एंड प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस तो कुछ होगा नहीं, सो प्रैक्टिस। एंड ऑनेस्ट हो गए तो कुछ डरने का जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा एंड यू नीड नॉट टू मग अप, और डरने की जरूरत नहीं होगी। तो ये काम, कंपोस्ट, ऑनेस्ट, प्रैक्टिस and confident is the 5 point perception of SSB. And if you have all these things, practicing all this thing and following 5 BRCC, so you will be able to make this time. Thank you very much. आपका अपना ओपिनियन होगा, वो हमेशा यूनिक होगा। कोई आपके जैसा सोच ही नहीं सकता। होगा, हो सकता है 1000 में एक बंदा होगा, बट दैट इज अंडरस्टूड। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक एक बुक नहीं पढ़ी जिससे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा था कि जीपीई की भी बुक पढ़ रहे थे, ग्रुप प्लानिंग की कैसे कोई बुक पढ़ सकता है। इवन ग्रुप प्लानिंग छोड़ दो, आउटडोर्स की भी बुक पढ़ रहे थे। ब्लैंक स्टोरी सब लोग याद करने जाते हैं, आई गेस मैंने वहीं पे लगाई थी अपनी इंटरव्यू। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू बिकॉज मुझे पता था मेरे को सिर्फ सच बोलना। अंडर कॉन्फिडेंट वही बंदा होगा जो झूठ बोलेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द
this was the second lesson which I learned here. The first one was nation above everything. आप देश को कभी किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते. देश सबसे ऊपर है, उसके बाद आपकी जो भी आपकी प्रायोरिटी है, जो मर्जी करो. नेशन अबव एवरीथिंग. अगर आप में ये फीलिंग नहीं है तो आई गेस अगर यूनिक है तो क्रिएटिव है. एज सिंपल एज दैट. आप बोलते हैं क्या मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं अगर आउट ऑफ बॉक्स नहीं ला पा रहा हूँ. आपका जो अपना आइडिया है उससे क्रिएटिव दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता. मैं तो सर को रिकमेंड करूँगा इस पर बुक बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए. और इसका SSB उसके कवर पेज पे बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए. 95% ऑफ द टास्क यू विल बी एबल टू डू बाय द वे द कांसेप्ट. आपको कोई तरीके याद ही नहीं करने. तरीके आपको याद ही नहीं करने कि अरे ऐसे नोट बनते हैं, इस तरीके की ये 4 तरीके की नोट्स होती हैं. मैंने सुना है, ऐसे मैंने भी कभी देखा नहीं है. कोई जरूरत नहीं है उन सब चीजों की. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लेबर वर्क, ही इज इंटरेस्टेड इन आइडिया, पर्सनालिटी, अपनी लाइफ को. SSB वही है ना, सर बोलते हैं कि इवन अगर आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी यू नो इवन इफ योर डॉग इज एक्सेप्टिंग यू, SSB विल ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट यू. अगर आप अपनी लाइफ के रोल्स अच्छे प्ले नहीं कर रहे हो तो SSB को साइड में रखो यार. अभी आपकी जिंदगी 18 साल 20 साल या कुछ 22 साल 24 साल की भी होगी. इतनी ज़्यादा जिंदगी चली है आपकी. आपने अपनी जिंदगी किस तरीके से जी है, इसको इम्प्रूव करो. SSB अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. इमेजिन लाइक दिस यार. फील प्राउड कि आप कहीं जा रहे हो, ऐसी जगह पे जा रहे हो वेयर यू विल बी डायरेक्टली सर्विंग द नेशन. ऐसे नहीं है तो उसी हिसाब से उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम भी करो. एकेडमी की यही एक अच्छी बात है कि वो कभी भी तुम्हें चेंज नहीं करेंगे, टोटली चेंज नहीं करेंगे. जस्ट जो तुम हो उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आएंगे. एंड दैट इज 5 पॉइंट परसेप्शन से योर माइंड बिकम्स सो वाइड. तो उसकी वजह से तुम्हारी स्टोरीज कभी भी कम नहीं पड़ेगी, ज्यादा हो जाएगी. मेरे स्पेस कम पड़ रहे थे तो मैंने थोड़ी सी हैंडराइटिंग छोटी करनी शुरू कर दी. लेकिन ये नहीं हुआ कि नहीं मेरा छूट गया, ऐसा नहीं हुआ. तो मैंने सर को बिल्कुल बता दिया कि सर आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम लक्ष्य एकेडमी. और फिर सर ने पूछा कि अच्छा तो क्या सीख लिया वहां पे तुमने. तो मैंने बोला सर वहां पे मैंने ये सीखा कि ट्रूथफुल रहो और किसी और से कुछ भी बोरो मत करो, अपने आप को बस अच्छा रखो. और मैंने सर को समझा दिया कि सर वहां पे मैंने 5BRCC सीखा, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखी, मैंने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया. तो ये सब चीजें मैंने सर को बोल दी और फिर मैंने समझाया भी कि 5BRCC क्या होता है. और वो सब सुनने के बाद सर कहते ओ वेरी नाइस, आई वुड लाइक टू विजिट दैट प्लेस. तो सर बहुत लक्ष्य एकेडमी की सबसे अच्छी बात लगती है गुरुकुल. मतलब यहाँ पे बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं. हम लोग भी जैसे बैठ के कनेक्टिविटी करते थे एक दूसरे के साथ. GDs हम खुद अरेंज करवाते थे. तो ये सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ पे कम हो. I was not pre-prepared about stories. Whatever was clicking to my mind at the same time, I was writing down my views. Make this interview go well, तो रोल प्ले सुधारना पड़ेगा. Because role play is very important in life. Role play as a good student, as a good son, as a good brother, and the second thing which I did in interview was कि मैंने सिर्फ सच बोला था पूरे इंटरव्यू में, कोई भी झूठ नहीं बोला. To improve character, to be a good human, and then automatically SSB will take that kind of person. Instead of just knowing and manipulating about SSB and just cramming things, I think we need to perform as natural as we are, and that is quite important. And जो सर हमेशा बात करते हैं कि लाइफ में अच्छा बनो, and then SSB will automatically take you. So SSB is just a subset of life, and that is quite important to know. And I think Lakshya Academy helped me very much, and I am thankful to Colonel Yudhvir sir to give me such guidance. I think otherwise I would have created records in Screen Out, and that this guidance helped me very much.